It's a very relatable friend group. Yeah, I just love the dynamic. It gives you a feeling like you're looking at your own people. So this show has, I think, taken all of us back somehow to school, to college, हमारे experiences, and I honestly, right from the first day of when I read the script, I thought that this is absolutely relatable to everyone watching the show. Friendship में प्यार आ जाए तो question mark. Firstly, welcome and congratulations for the trailer. The trailer look amazing. तो अभी इस वक्त this whole day would be very tiring for you. तो ये इंटरव्यू करते वक्त क्या जी कर रहा है सबसे पहले तो ये बताइए. I want the genuine reaction. I have to say, I am really surprised. I am feeling fantastic even after like the 10th interview. Really? Because I think इस बार जो आए हैं genuinely उन्होंने बहुत ही मज़ेदार बना दिया है इंटरव्यू का फॉर्मेट. We mostly played games since morning. Right. And honestly इनके साथ में genuinely बहुत मज़ा आता है. मुझे वो इंटरव्यू वो प्रमोशन वाली फीलिंग ही नहीं आ रही. I'm feeling like I'm just hanging with a bunch of friends and hanging with lovely lady like yourself and just like having a chat about life, love, relationships, Right. friendships. Sohail, do you have the मुझे same यार feeling? एक्चुअली मैं अभी आपके आने से पहले पीछे देख रहा था और मैंने वहाँ पे जी करदा लिखा देखा. बहुत अच्छा लगता है यार. इतने वक्त से आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो और एक आपके जहन में होती थी वो चीज़. नाउ इट्स देयर, इट्स रियलिटी. आज ट्रेलर आया है और सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है. सो इट्स अ वेरी सरियल फीलिंग. तो थकान तो नहीं हो सकती. बस मैंने अभी एक आइसक्रीम मंगाई है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ. तो मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. Right, Samir, what do you want to say? No, I think there's just happiness and excitement because this show has been some time in the making. Because I remember, are we talking about how long we've been on this? Yeah. Yeah. So I auditioned for this in 2020 August. We started shooting 2021 August. 2022 June we we wrapped, finished. yeah. I have been waiting and waiting and waiting for the show to come out. So that was exhausting. And we are finally getting to speak about it क्योंकि दोस्तों को घर पे मम्मी पापा को तो बोल रखा था कि शो आ रहा है कब आ रहा है. So no, not exhausted and I needed a coffee and I have it. So thank you. Yeah, Sayan. आई थिंक लास्ट 6-8 महीने से यही है कि सारे लोग जो दोस्त लोग हैं सब पूछ रहे हैं कि भाई शो कब आ रहा है, कब आ रहा है शो. यू नो, तो उस क्वेश्चन से काफ़ी थक चुका हूँ मैं. बट अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे है, 15 को शो रिलीज़ हो रहा है, 8 ट्रेलर रिलीज़ हुआ है. ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक है. सो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, एक्सटैटिक. थोड़ा ब्लर सा हो गया हो क्योंकि अभी ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, लोग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं कि उनको शो अच्छा लग रहा है. तो मेरे लिए राइट नाउ तो मीन्स थकान शायद 16-17 को होगी. फिलहाल खुशी हो रही है. सो शो दोस्तों के बारे में है. टेल मी कितनी मेमोरीज ताज़ा हुई, वो स्कूल डेज कॉलेज डेज वाली कितनी मेमोरीज ताज़ा हुई जब आप लोगों ने इस शो को शूट किया तब. आई थिंक हमारे जो भी सीन्स साथ में होते थे वो सबसे ज़्यादा फन होते थे. बिकॉज एक तो हमारे सबके कैरेक्टराइजेशंस एक दूसरे से बहुत अलग हैं. और मुझे लगता है कि हर फ्रेंड ग्रुप में हम में से एक कोई बंदा ऐसा होता है. तो इट्स अ वेरी रिलेटेबल फ्रेंड ग्रुप. And yeah, I just love the dynamic. It gives you a feeling like you're looking at your own people. And वो recreate करने में वो वाली feeling को एक show में डालने का मज़ा ही कुछ और है. And I honestly मेरे साथ ये शायद almost 15 साल पहले हुआ था. I did a film called Happy Days, which was my first Telugu success, which kind of got me to where I am. And that was an ensemble. And that was about people in their 12th standard or like about to go into engineering. Right. And now I'm in my 30s and here I am, playing finally adulting kind of vibes in an ensemble again. And it's the kind of show that introduces people to this world, which is urban Mumbai. And this dynamic, I think, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है. Right. यार ये हम दिल चाहता है देख के बड़े हुए हैं. और मैं बहुत प्राउड के साथ कह सकता हूँ ये हमारी दिल चाहता Yeah, है हमारे दिल से. Wow. कि मेमोरीज आपके स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ से आती हैं, पर इतना ऑथेंटिक रिलेशनशिप एक्सप्लोर हुआ है इसमें कि मैं बिना नाम लिए एक जैसे कॉन्वर्जेशन का एग्जांपल देता हूँ कि
आप अपने किसी दोस्त को बोलो यार तेरी ना ये आदत मुझे पसंद नहीं है, और वो आप पे चढ़ जाए कि यार क्या हो गया, तू भी तो ये करता है तो मैं भी ये नहीं कर सकता, एंड देन यू क्रैक इनटू अ जोक. सो इट्स सो मच रिलेटेबल कि आप एक दूसरे को कुछ भी बोल के फिर ताली मार के भूल जाते हो. तो वो बहुत कमाल है. Definitely. I don't think कि ये सिर्फ, I mean I know we are showing a group from Bombay, Mumbai, but मैं जामनगर से हूँ, मैं एक छोटे शहर से हूँ, and I could completely relate to my own character. So I think certain emotions, certain feelings or relationships are universal. And other than that, I think even the chemistry of the 7 friends with each other, because I have grown up in a small town and I don't think I felt out of place. I think I could relate to the chemistry of the group and to the character individually, and I don't think it made any difference whether we were in Mumbai or anywhere else. Right. So I think we are relatable, we are raw, and we are shades of grey, and we are completely flawed like ourselves. Right. Sayan, what do you? एक मज़ेदार किस्सा है, हम लोग रात को शूट कर रहे थे टाउन में, और सुहेल, हुसैन, आशिम और मैं, और अरुणिमा जो डायरेक्ट कर रही है, अरुणिमा ने बोला क्रिकेट खेलते हैं, इमेजिनरी क्रिकेट, ना हमारे पास बॉल थी ना बैट, तो हम ना स्टंप फॉर्म वहाँ पे सब इमेजिन कर रखे थे और हम वो खेलने लग गए इमेजिनरी. वो अगर आप देखोगे आपको ये लगेगा 4 पागल भाग रहे हैं रात को, हाँ वो भी रात को. तो वो जब हम खेल रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस स्कूल पहुँच गया, मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट विकेट खेल रहा हूँ, यू नो, बिकॉज उस जमाने में वैसे ही था ना, 11-12 में आपको क्या कर रहे हो, तू शाम को कुछ नहीं कर रहा, चल क्रिकेट खेलते हैं, नाइट क्रिकेट. So this show has, I think, taken all of us back somehow to school, to college, हमारे experiences, and I honestly, right from the first day of when I read the script, I thought कि this is absolutely relatable to everyone watching the show. Whether you're Gen Z, whether you're millennial, whoever you are, Dosti Yari is not a kahani which started today. You know, Dil Chahta Hai is what we were brought up on, and hopefully the next generation will be brought up on Ji Karda. जय माता दी. All right. So ट्रेलर में एक डायलॉग है, फ्रेंडशिप में अगर प्यार आ जाए तो, सो यू ऑल हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर थॉट. क्या सोचते हैं आप इस बारे में? फ्रेंडशिप में अगर प्यार आ जाए तो भगवान बचाए. वाओ. पर मुझे लगता है कि अगर प्यार में फ्रेंडशिप हो तो फिर वो प्यार इज, यू नो, डेफिनेटली. या तमन्ना, व्हाट्स योर थॉट? फ्रेंडशिप में प्यार आ जाए तो क्वेश्चन मार्क. व्हाई? आई डोंट नो, या आपको शो देखना पड़ेगा ना, मैं बता दूंगी तो फिर क्या बचा रहेगा. सयान, व्हाट डू यू में वांट? प्यार आ जाए तो 7 करोड़. भसूड़ी. ओके, सो हमारा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड होता है जिसमें अलग अलग तरीके के फ्रेंड्स होते हैं, बट आई वांट टू नो कि ऐसा कौन सा तरीके वाला फ्रेंड है जो आप लोगों को अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहिए? ये ग्रुप में से हाँ, नहीं, हमारा ग्रुप तो बहुत सही है. या फिर अपने पर्सनल लाइफ में, या अपने पर्सनल थॉट या पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी टाइप का फ्रेंड जो नहीं चाहिए अपने लाइफ में कभी? यार अगर वो फ्रेंड है तो फिर यार वो अपना ही है ना, फिर उसको क्या जज कर रहे हैं हम? या फ्रेंड है. फ्रेंड है. अगर वो फिर अपने वो टाइप जैसा का भी नहीं है है. तो फ्रेंड नहीं है. हाँ, तो फिर फ्रेंडशिप आएगी ही नहीं, और अगर बार फ्रेंडशिप आ गई तो फिर वो अपना है यार. ये Right. यार नहीं दोस्त के लेकिन साथ ऐसे. वैसे शो में कितने कितने अलग अलग तरीके के फ्रेंड्स हैं? ओ हम सब व्हाट बहुत काइंड अलग ऑफ हैं. फ्रेंड्स यू 7 ऑल आर? तरीके के. हाँ, 7 तरीके के But- अलग अलग फ्रेंड. अलग अलग फ्रेंड्स. अलग अलग. ओके, सो शो के बारे में कुछ बताइए मुझे. लाइक ऑब्वियसली इतना टाइम लगा, ऐसी सी सेड तो मुझे शो के बारे में कुछ बताइए. आई थिंक बहुत से मोमेंट्स हैं जो शायद हमने जिए हैं. जैसे फॉर मी, आई रिमेंबर एक चीज़ जो मुझे मुंबई में करना बहुत पसंद है, इस बीच रात में जाना और स्ट्रीट फूड खाना. ये मुझे मुंबई में करना बहुत पसंद है, क्योंकि मुंबई जो रात में अलग लगती है. रात में भी एक अजीब सा एक टेम्पो रहता है. लाइक आपको रात में भी बहुत लेट नाइट को भी ट्रैफिक मिल सकता है, आप ट्रैफिक में फंस सकते हो, एंड उसके बीच में यू नो स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स. और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस शो में इज रैंडम प्लान्स जो हम सब अपने दोस्तों के साथ बनाते हैं. लाइक अगर कल ही मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया था लाइक 7:30-8 बजे कि यार मैं डिनर करने जा रही हूँ, कम डाउन ना, एंड आई वॉज अबाउट टू स्लीप. सो बट लाइक दिस इज़ अ वेरी मुंबई कल्चर कि अब ऐसा नहीं कि हमने प्लान 2 दिन पहले बनाया, सुबह को भी बनाया, आफ्टरनून में भी बनाया. 10 मिनट पहले जब इंसान बाहर हैंग आउट कर रहा है तब वो बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ तो तुम भी आ जाओ. एंड दैट्स अगेन समथिंग, सो आई फील लाइक दीज काइंड ऑफ मोमेंट्स
आपको इस शो में बहुत सारे मिलेंगे जो immediately will take you into your own friendships and your own relationships. So I think that's something I really love about this show कि it's very real, it's very relatable, it's got a lot of like heart and warmth to it and वो मुझे बहुत पसंद है. मैं अगर शो को समराइज करने की कोशिश करूं तो बचपन में जब आपको लगता है कि बाय 30 आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी और जब 30 पे सॉर्ट नहीं होती तो वो जिंदगी हमने एक्सप्लोर की है कि अक्सर एक सवाल है जो हम सबकी इंडिविजुअल लाइफ में चल रहा है एज कैरेक्टर्स और एज लाइक पर्सनल लाइफ अपनी लाइफ में भी कि यार ये वैसा नहीं है जैसा चाहा था और इंस्टेंटली आपने सिनेमा में देखा होगा कि फिर कैरेक्टर्स को जवाब मिल जाते हैं. यहाँ पे हमने सवाल को ही एक्सप्लोर किया कि आपको जवाब नहीं मिल रहे बट यू हैव टू गो ऑन बिकॉज यू हैव टू कीप लिविंग द लाइफ. तो स्लाइस ऑफ लाइफ लाइक दैट हैजंट बीन एक्सप्लोर्ड. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है. आई होप अच्छा की हो. डेफिनेटली किया ही होगा अच्छा. So I think just carrying forward what he is saying that we all as we are growing up and our 20s is the time जहाँ पे आप लाइफ के बहुत बड़े decisions लेते हैं in terms of career, in terms of your partners, in terms of who you're going to marry. These are very big decisions that are going to pay off or you're going to regret them later. Right. So just adding to what he said, it's the exploration of making these choices, whether you regret them or you're happy about them or somewhere in between, and also in the middle of all of that, how are you depending on your friends and कैसे कई बार वो लोग आपको हेल्प भी करे और कई बार रायता भी फैला दे रहे हैं. Because friendships में कई बार गड़बड़ी भी हो जाती है. You might it might not work out as you had expected. So I think it's that it's exploration of all of this. Yeah. Right. आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये शो ने ग्रेज को एंड इम्परफेक्शंस को एक्सप्लोर किया है. मोस्ट शोज जो आम जिंदगी में शायद होता ही नहीं होता है, मुझे नहीं पता, बट हमारे में भी ग्रेज है, हमारे में भी इम्परफेक्शंस है. एंड मोस्ट ऑफ आवर शोज बहुत हंकी डोरी है, ड्रामेटिकली पॉइज बट हंकी डोरी एंड देन गुड फिनिशेस ब्रिलियंटली वेल, हैप्पी एंडिंग. इस शो में मीन्स इट्स अ करेजियस कॉल. It's Arunima's call. It's a courageous call to explore the imperfections and the grace of humanity. I think for me that is what was interesting in this script, apart from a lot of other scripts and a lot of other friendship stories that you keep making on OTT or on any platform. And not in a dark way. मतलब grey is not dark in our show. It's a matter of fact. कि हाँ हम human beings हम inherently flawed हैं. Accept us. So as It's bright. It's also that's what adding to Sohail. It's bright. There's an element of brightness. It's not that grays and imperfections always equal to dark stories. Right. So as a person, are you all a good decision maker or a good advisor to a friend? To a friend. Yeah. What do you think? You A good decision maker कैसे मतलब उनके लिए मतलब उनके अपने बारे में कुछ अच्छा सोचना हो तो आप अपने तरफ से कितना अच्छा सोच लेते हैं, या अपने फ्रेंड्स की एडवाइस लेकर कुछ अपने बारे में सोचते हैं, या आप एक अच्छे एडवाइज़र है जो फ्रेंड्स जो होते हैं ना, फ्रेंड्स अपनी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आते हैं और आप कुछ अच्छा एडवाइस करते हैं. व्हाट आर यू as of So your what I have thought? seen in my life and in the recent past, like whenever I've had very strong lows, I have been very open with my friends. Like I talk to them. बहुत कम दोस्त हैं, बट जो हैं उनके साथ like जैसे कहते हैं ना डॉक्टर और लॉयर के साथ आप पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी करते हैं, तो मेरा वो इक्वेशन मेरे दोस्तों के साथ है कि आई एम फुली ट्रांसपेरेंट विद देम ऑलमोस्ट टू अ पॉइंट कि यार दे कैन सी आई एम स्टूपिड or they can see I'm dumb or they can see I'm not making a smart decision. I'm not scared to tell that to them. So I actually seek advice from my friends because I trust them. And that's one place that's my safe haven. It's a place where I feel like it's okay to be, if they think something, it's fine because that's how they make me feel. So I am someone, I don't know, I guess I take advice from my friends more than giving them. Because I don't think कोई आपकी advice कभी actually, unless someone asks you for advice, I don't think anyone really wants your advice. I think. Right. I agree. हाँ मतलब बिना मांगे ना मुझे एडवाइस लेना पसंद है ना देना. अगर क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपका कोई क्लोज वन, आपका दोस्त या कोई भी तकलीफ में है तो आप खुद जाके मदद ना करो. यू बी देयर फॉर द सपोर्ट. Very true. पर लेट देम फाइंड देयर ओन वे, क्योंकि जरूरी नहीं है जो चीज आपके लिए वर्क किया उनके लिए भी करेगी. तो ये लाइक ये सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है
कि इस बारिश में छाता लेना है या भीगना है? What do you want to say? मुझे लगता है कि आई थिंक ये यूनिवर्सली ये होता है कि आपको दूसरे की लाइफ के बारे में ज्यादा समझ में आता है बिकॉज यू हैव एन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन अबाउट इट बिकॉज यू आर अ थर्ड पर्सन वाचिंग इट एंड तो उनके लाइफ के बारे में आपके पास ओपिनियन या एडवाइस बहुत अच्छी होगी, वो सामने वाला ले या नहीं ले वो उसकी इच्छा है. और you like I can give brilliant advice to other people and I have so dense when it comes to my own life because then I think because it's a subjective experience, right? तो मुझे अपनी प्रॉब्लम में मैं मुश्किल से तैर पा रही हूँ, डूब रही होती हूँ, पर दूसरों के बारे में मुझे बहुत समझ में आ रहा होता है और मैं बहुत अच्छी ओपिनियन एडवाइस दे सकती हूँ. थोपनी नहीं चाहती बट दे सकती हूँ इस व्हाट आई ऑनेस्टली मैं किसी को एडवाइस देता ही नहीं. ये सारी चीज़ें बैकफायर करती है, ठीक है, और उसके बाद वो इंसान वापस यू टर्न मार के आके मुझे गाली देगा. ठीक है, दूसरी बार ये है कि खुद की ज़िंदगी संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं कहाँ जाके इस बंदे को एडवाइस दूँ. तूने कहा था प्रिया लाइक्स मी. तो आप अच्छा अपने लिए अच्छा डिसीजन तो ले ही वो लेते भी डाउटफुल है. मेरे पास आना आई गिव यू एडवाइस. ऑलराइट तमन्ना, जाने से पहले मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी रैप अप किया आपने जेलर के लिए, कुछ कहना चाहेंगी? सॉरी जेलर के बारे में कहना चाहेंगी? रैप अप हुआ है Yes. और रजनीकांत सर के साथ काम it's I mean शायद मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है बिकॉज रजनी सर के साथ कौन काम नहीं करना चाहता, बट ही वॉज वेरी स्वीट. उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की है which is on a spiritual journey. So it's a lovely. I think I just thought it was so thoughtful of him कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा और एक book मुझे गिफ्ट की and he autographed it. So it's a special memory from him. वाह. ऑलराइट, लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए जो ये शो रिलीज के बाद देखने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस देखो. I'd say 15 June. Please go on to Amazon. Start this show. बाकी आप खुद कर लेंगे. तो आप शुरू करिएगा show. just watch. शो देखिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी Thank बेस्ट. you. Thank you. सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, द ट्रेलर लुक अमेजिंग. पहले मुझे बताइए सब ट्रेलर देखकर आप लोगों का क्या रिएक्शन था? वाह क्या ट्रेलर है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मैंने तो शो भी बनाया, ट्रेलर बनते हुए देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग बताएं. अब मैं खुद क्या बोलूँ. आन्या टेल मी. बहुत एक्साइटमेंट थी ऑब्वियसली, बट लाइक शी सेड हमने तो एक्ट और बनाया है, तो अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव इज मोर इम्पोर्टेंट. सेटिस्फैक्शन कि नाइस, हमने मेहनत की है, बन गया, इंशाल्लाह लग रहा है हैप्पी. वेरी नाइस. ओके, सबसे पहले आशिम आपसे स्टार्ट करूंगी. दिस एनर्जी विच यू गॉट इट, ओ माय गॉड, मैं बाहर खड़े रहकर पूरी आपकी आवाज़ और हल्ला सब सुन रही थी. हाउ डू यू गेट दिस एनर्जी इतने सारे इंटरव्यू देने के 3 बाद? कॉफीज के बाद. This is not a there is no Endorsement branding here. involved, but coffee. यही आपको एनर्जी हाँ देता है? हाँ. अच्छा, और कोई पैशन, हंगर ऐसी चीजें नहीं देती. नहीं मैं यूजुअली ऐसा ही हूँ. पर सबसे लाउड तो नोन थी. आशिम तो सबसे आज सबसे डीप रहा है. मैं मतलब यूजुअली लाउड ही रहता हूँ. आज इनफैक्ट या यू राइट. Yeah. मैं भी काफी लाउड किस्म की. मतलब कह सकते हैं संगत का असर है. ऑलराइट, टेल मी अबाउट द शो. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू नो यू गॉट द डेट्स. कैसा क्या फीलिंग है इस वक्त और क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? काफ़ी लंबी जर्नी रही है और ये सबको पता है कि एक फिल्म मेकर के लिए सबकी एक लंबी जर्नी होती है. किसी भी आप डायरेक्शन से जाओ इस डेस्टिनेशन, कभी भी इट्स नॉट अ स्ट्रेट जर्नी. इट्स टेकन मी इयर्स. मैंने फिल्म स्कूल से ट्रेनिंग ली FTI से, उसके बाद बहुत काम किया. कॉकटेल में एसोसिएट डायरेक्टर, फाइंडिंग फैनी में एसोसिएट डायरेक्टर विद होमी अडजानिया, और उसके बाद काफ़ी सालों से मेरी इच्छा थी कि लॉन्ग फॉर्मेट में मैं कुछ डायरेक्ट कर सकूं. एंड जब मुझे स्टोरी आइडिया आया, हुसैन वाज द फर्स्ट पर्सन आई थॉट ऑफ एंड आई वेंट टू, बिकॉज ये दोस्त भी है और मुझे पता है कि जिस तरह की मुझे कहानी कहनी है उसके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंसेस पे है, दोस्ती पे है, और थोड़ा सा इसने बहुत एक अच्छी बात बोली कि हमें थोड़ी दर्द वाली चीज़ें भी बोलनी है और खुशी और हंसी वाली चीज़ें भी बोलनी है, बट मुस्कुराते हुए. हमें खुद एज फिल्म मेकर्स, राइटर्स ये स्टोरी ट्रेजेडी या ड्रामा या खुद रो के नहीं बोलना है, बिकॉज लाइफ इज इन ऑल इट्स फॉर्म्स, अपने सारे ग्रेज और गलतियों के साथ फाइनली इट्स अ जॉय राइड. एंड मैं चाहती हूँ कि शो को भी लोग
फाइनली उसका मोटा मोटा यही हो कि मज़ा आया देख के, गाने भी अच्छे थे, कैरेक्टर्स से भी हम रिलेट कर रहे हैं, ये मैं हूँ, अरे ये मैं नहीं हूँ, पर हाउ इंटरेस्टिंग. सो दैट इज़ माई होप. And the trailer is just a capsule. There is so much more in the show, and there is सातों characters, सातों दोस्तों की बहुत अलग अलग journey है, and flavors अलग हैं. ऐसा नहीं है कि सबका ही love issue है या सबका ही कोई professional. Everyone has their conflicts that are different, and I really hope like millennials, Gen Z, the older generations, everyone sees it. राइट. सो ट्रेलर में एक डायलॉग है, फ्रेंडशिप में अगर लव आ जाए तो. सो क्वेश्चन मार्क आपको कंप्लीट करना है. व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? फ्रेंडशिप में अगर लव आ जाए तो जिंदगी बेहतरीन हो जाए. नाइस. Friendship में अगर love आ जाए तो it can become a hot mess. फ्रेंडशिप में अगर लव आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो सकती है. ऑलराइट. फ्रेंडशिप में अगर लव आ जाए तो आने दो. जो आता है आने दो. किसने रोका है? ऑलराइट. टेल मी समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर. हाउ मच डिड यू एंजॉय डूइंग इट? आशी. Did you enjoy doing it? Yeah, I did. I did. I really enjoyed playing Arjun Gill. Because वो character ही ऐसा है. I feel it's a rock star. He's fun. He's wild. He's free. He's passionate. He loves passionately, and he's just with his friends, there's such a brilliant bond that he shares with his friends. That is his safe space. And he's a very warm guy. Yeah, like वो hug नहीं करता, वो जब भी पाता है. दबोच लेता है. तो वो और उन दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है. तो I feel that is he's an emotion that comes and goes, and when he comes, you just feel activated. And that's what he does with his friends, and that's something. And the bond is so beautiful with his friends that कि वो दुनिया में कहाँ पर भी कुछ भी कर रहा हो या कुछ भी परफॉर्म कर रहा हो, कहीं भी हो, जब वो घर आता है ना, तो घर पे सारे बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं. और उसके लिए वो एक बहुत ही प्योर और बहुत ही सेक्रेड स्पेस है. एंड दैट्स व्हाट ही एंजॉयज द मोस्ट. ये एक पार्ट है अर्जुन का, और एक दूसरी साइड है जहाँ वो वेरी इज लॉन्गिंग फॉर समथिंग दैट ही नेवर हैड. I don't want to talk too much about it because it will give away a lot and she will kill me. But I feel like it's just there is so many layers to Arjun, and you will see that. You will see it in parts how beautifully like he he just like takes one out of the other and will be absolutely naked in front of you. So that is I just had a lot of fun playing Arjun. I'm very blessed to play this character. Right. Anya, would you like to, same question to you, would you like to say something like how much did you enjoy doing the character? मुझे बहुत मज़े आए प्रीत का किरदार निभाते हुए. और प्रीत वो हाई एनर्जी फ्रेंड है. वो like she's been tagged like the 3 AM friend. She is the glue of the group. But आप देखते हो जैसे जैसे एपिसोड आते जाएंगे कि प्रीत में भी बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ हैं, और वो वैलिडेशन वो अपने दोस्तों से सीख करती है. लावण्या स्पेसिफिकली शी रियली लुक्स आउट फॉर कि वो क्या सोचेगी अगर मैं ये करूँगी, या व्हाट विल हर रिएक्शन बी. तो आई थिंक तमन्ना's कैरेक्टर हु दे प्ले बेस्ट फ्रेंड्स. तो शी रियली यू रियलाइज कि हाँ शी इज़ अ कॉन्फिडेंट गर्ल, बट एक्चुअली उसमें इनसिक्योरिटीज़ हैं. वो वैलिडेशन सीख कर रही है और वो प्यार को ढूंढ रही है. आई मीन प्रीत इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड काउंसलर. तो वो सबको एडवाइस दे सकती है, लेकिन खुद के लाइफ में बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, जो एक्चुअली होता है बहुत ना. किसी और को एडवाइस देना बहुत आसान होता है, अरे डू दिस ना देन. पर जब खुद की बारी आती है एक्चुअली यू रियलाइज कि इतना इजी होता नहीं है. सो she's happy-go-lucky, she's high energy, she's all of that, yet she can't find love, which is a question mark. Because you're like, but इसमें क्या खामियत है? So Hussain ji, you married your love of your life. There is one question which Tamanna has, and कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी शादी करके.
both I have the question for both of you. Have you ever come across this question in your real अभी life? अभी शादी हुई है, इतनी जल्दी तो नहीं होगा. Yeah, इतने जल्दी तो नहीं होगा. नहीं और इंशाल्लाह ना हो, बट उस कहानी और उस कहानी के लिए वो सवाल रेलेवेंट है, बट ऐसा नहीं है कि वो सबकी जिंदगी में आता है सवाल. तो उस हिसाब से उस कहानी, हमारी कहानी में वो बहुत रेलेवेंट जगह पे आता है कि यार गलती तो नहीं कर दी हमने, बट जरूरी नहीं है कि सबकी जिंदगी में आता है. मुझे लगता है कि, और अक्सर बात सिर्फ शादी या प्यार की नहीं है, किसी भी फैसले को लेने के बाद अक्सर इंसान की फितरत है कि वो पूछता है कि ये गलत जूता तो नहीं पहन लिया मैंने, ये गलत गाड़ी तो नहीं खरीद ली मैंने, ये गलत पिक्चर तो नहीं कर ली मैंने. वो तो हम करते ही रहते हैं. Right. उसमें से एक हमने सोचा, लाइक वी ऑलवेज से, टू सिंप्लीफाई इट, कि शायद प्यार में भी ऐसा होता होगा. तो एक्चुअली वो हमारा इंटेंशन था. Yeah, what do you want to say? आई फील कि रिलेशनशिप्स लीनियर नहीं होती. मतलब ऐसा नहीं है कि सब अच्छा हुआ और फिर प्रॉब्लम हुई और तब हम बोलेंगे हमने गलती तो नहीं कर दी और फिर से सेपरेशन हो जाएगा या ब्रेकअप हो जाएगा. Right. समटाइम्स दैट मोमेंट जब आप सोचते हो कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी, इज लाइक उसको क्या बोलते हैं जिसपे कूद के बहुत ऊपर जाते हैं, ट्रैम्पोलिन. समटाइम्स दैट मोमेंट इज अ ट्रैम्पोलिन इन योर लाइफ. योर लोएस्ट मोमेंट ऑफ दैट रिलेशनशिप will take you take your relationship high again, क्योंकि तुमने जो हो गया उसको एड्रेस कर लिया एंड देन यू मूव ऑन. एंड आई थिंक शादी, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है बहुत लोगों के लिए, इवन लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो ऋषभ एंड लावण्या यानी कि तमन्ना और सुहेल प्ले कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड स्कूल स्वीट हार्ट्स. तो आपका कभी रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे रहे, क्योंकि ज़िंदगी कैसे एक स्ट्रेट तो होती नहीं, ऊपर नीचे होगी. तो वो उनके रिलेशनशिप का एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है. Right, right. So मैं जानना चाहूँगी, what describe yourself as a friend. किस तरीके के फ्रेंड है आप लोग? अपने आप को किस तरीके का फ्रेंड मानते हैं आप? You can, like somebody who you can count on. You can call me at whatever hour and at whatever time, no matter where I am in the world. If you need me, I will be there. Okay. So that's somebody that I think I am. They say there are various love languages, and I think my love language is action. More than words, gifts. I think कि मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर when they have an important moment to be there, it is more important to show up. And I hope my friends think I am a reliable friend. Okay. Same, actually. To be there at the most important times for my friends, I feel like, and कभी-कभी आप इतनी उलझ जाते हो अपने खुद की ज़िंदगी में कि you're like, आज मैं बहुत लेजी फील कर रही हूँ यार, ठीक है मैं नहीं जाऊँगी. पर you don't realize जब आप जाते हो और उनका जो स्माइल होता है ना बस आपको देख के, then you're like, this is why this is there in my life. तो I am a disconnected friend. मुझे फ़ोन पे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं होता, but I will make sure I am there for the important occasions. Okay. आई एम सॉरी फ्रेंड. मेरी ज़िंदगी के सारे रिश्तों में मैं बहुत आई एम सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं गायब रहा हूँ. और मेरे बहुत कम दोस्त हैं लेकिन बहुत सच्चे दोस्त हैं, बिकॉज वो मुझे दे डोंट लव मी बिकॉज दे लव मी डिस्पाइट. सो मेरे बावजूद मुझसे मोहब्बत करते हैं. तो इसलिए बहुत कम दोस्त हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, बिकॉज तो जानते हैं कि पहुँच नहीं पाऊँगा लेकिन आऊँगा. हाँ, बिकॉज वो तेरी आई एम सॉरी की तब्दीलियत इट्स ओके से निकाल देते हैं, है ना? So that's what it is. Yeah. Do you guys still have your childhood friends? Like किसके हैं अभी तक के childhood friends? You don't have? नहीं, I'm joking. तो है नहीं? हाँ, है, बहुत हैं. So my dad was in the police, so we kept getting transferred. तो मेरे कॉलेज के हैं. Okay. And you both to have. Yes. You All both right. have. We have. Because you raised your hand. Yeah, both. All right. So since this, story is all about friendship, what do you want to say to your friends? One message which you want to give it to your friends specifically. Actually, want to thank my friends. क्योंकि जब भी मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा या I'm not saying just the good stuff, the bad stuff. My friends have been the ones in the forefront. So I actually want to thank them for always being there for me and accepting me for being this very disconnected and forgetful person. Sweet. You want to give?
हाँ, thank you. Same thing. Thank you because I feel like what do I feel? I feel many things. I don't know. I just feel like कि मैं अपने बहुत दोस्तों को कैरी करता हूँ अपने साथ यार, और मेरे जितने करीबी दोस्त हैं वो सारे मेरे अंदर रहते हैं. तो thank you for that. To have to give me yourselves, a part of yourselves, and to allow me to keep you guys in me, so that I can go on do what I do without having them physically be with me, because their heart and their emotion is inside. So I carry them with me, and so thank you for that. All right. Arunima ma'am, you have something. I would say to them, look where we've come and we've done okay. Oh, wow. Very nice. Amen, sister. I'll say I'm sorry. I'll say I'm sorry. मैं तुम्हारी शादियों पे नहीं पहुंच पाया, तुम्हारे बच्चों के बर्थडेज पे नहीं पहुंच पाया. मैं लेट चल रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, बट सॉरी और थैंक यू, क्योंकि मैं नहीं आया था लेकिन तुमने याद तो किया था. Wow. उतना काफ़ी. Very nice. All right. Thank you so much, guys. All the very best for your. Thank you. Thank you.